So I welcome you all on behalf of iHub Manpower Solutions. Hello everyone. This is Mihur Upadhyay. I'm from iHub Manpower Solutions, and first of all, thank you so much for joining in. We are still anticipating a lot of people. They are joining in. They are messaging. They want the last minute entry. So we expect them to be joining in soon. Uh, So before we go ahead, let me wish you all Eid Mubarak. Today is the Ramzan Eid, so I wish all my friends a happy Eid Mubarak. There always been a confusion कि ईद कब शुरू होती है, आज है, कल है, but I suppose there is always way and a chance to wish Eid in advance. So this is wishing you all a happy Eid Mubarak. Yeah, so before we start, and I hand over the screen to my friend Suhag Mistry, who is the speaker for today. I will be the moderator. Before we move ahead, let me share certain things about what iHub Manpower Solutions is all about. So, iHub Manpower Solutions is the one-stop solution for your HR needs. Steve Jobs has said that great things in business are never done by one person; they are done by a team of people, and he is absolutely right. So, what is iHub Manpower Solution does? We are we are basically mastermind enterprise company in past, and now we are into the journey of individual entrepreneurship onto our own entrepreneurship journey. We provide HRM solutions to SME industry, which includes manpower recruitment, staff training of various verticals, and HR consultancy products also that helps our clients to make them achieve their HR objectives. We have been collaborated with a lot of partners, and that's how we provide a lot of services to each and every client of ours. We have been Yeah, we have what services we are offering. So we provide staff training modules for your scale employees, operations team, sales team, backend team. We are also into recruitment solutions for engineering industry, construction, chemical, IT, non-IT sectors in mid-level and senior level positions. We have been providing a lot of single sessions and 3-hour workshops for your team on various topics based on the needs of your company, which is sales, increasing efficiency, lean management, etc., etc. We are also developing one important product in our portfolio, which is a technical training course for engineers on PMP and EPC, which will be launched very soon in next two months. Now it's under pipeline. We are designing the whole module as of now. If you want to outsource your HR functions, building and formation of various HR policies, SOPs, HR consultancy is also one of the products that we are offering with partnering with some of the great people around us. So that's what the services that we are offering. For any inquiry, you can get back to me. The details are mentioned here. I have already reached out to you through LinkedIn, through social media. So I guess my details are available to everyone. So now comes the introduction to speaker. This is Suhag Mistry. I'm sure many of you are knowing him. You know what he is doing. He has been into MSME from last 10 years, but as of now, he's a founder of Nextern Business Solutions. He's a very popular name in MSME businessman fraternity, as he has been associated with MSME sector from last 10 years. He has vast experience as a business consultant in retail, organized retail, manufacturing, trading business, non-retail, and whatnot. He has been associated with many management colleges also, and he is very active in his own community building programs, which is one of the personality trait of Suhag, which I like the most. On personal and professional level, I've been knowing him from last 5 years now, almost more than 5 years, I guess, and his journey has been extremely inspiring. I'll share some of the pointers with you. As his name suggests, his name is Suhag Mistry, and in Gujarati, the Mistry is
carpenter. So he's from carpenter family. His father runs a small business of carpenter. He's a carpenter into carpenter business, and a journey from a son of a carpenter to a business consultant, and now having an entrepreneur. So the journey has been extremely inspiring. I always look up to him for the knowledge base. He's a voracious reader. He reads a lot of books, and you can ask him anything. You can have discussion on any topic with him. So that's how the speaker has been very active in almost all part of the knowledge base industry. So before taking a lot of time from you guys, I'll hand over the stage, or rather, I should say, hand over the screen in this new normal. I'll hand over the screen to him. But before we go ahead and I let you enjoy the whole session, some important instruction. Please keep your video and audio off so other participants can attend the hassle-free webinar. Put up your queries and questions in chat box. We have already asked you in advance what kind of questions and what kind of queries you have. So on the basis of that, we have developed the whole webinar and the content. But yeah, there are certain questions we'll be taking up. So put your questions into question and answer session and chat box, and we'll cover as many questions that we can at the end. Please do not put any marketing or promotional message about your company or yourself. That's a humble request to all of you. And yeah, this is another webinar which is coming up where I'll be sharing the details at last about the login details as well as the registration details. We have another webinar coming on May 28th. That's next Saturday and next Thursday at 7 p.m. On upcoming trends in IT industry. Mr. Priyank Oza, who is into TCS, Tata Consultancy Services, from last 14 years, will be joining us. So, and this is specially, this webinar is specially designed for IT industry, IT people, IT professionals, IT MSME entrepreneurs, and obviously HR professionals who have been looking forward for some kind of guidance. So do join us and do register for that webinar also. Thank you so much, everyone. Now I'll hand over the thing to Suhag. So let's welcome with a huge round of applause, Mr. Suhag Mistry. Suhag, Aditya, can you pass on the permission to Suhag for screen sharing so that he can share his screen and he can start? Aditya? Yes, good evening, everyone. Thank you. Thank you, Suhag. I welcome you once again, and have a fantastic session. I know the content that we have developed is amazing. So I'll hand it over to you, Suhag. Thank you. Amir bhai, thank you for the wonderful introduction. Aditya, the rights are yet to be shared. Screen sharing. Can you check, Suhag? Can you share the screen now? I am checking, but it is still disabled. Acha. Aditya, can you pass on the rights of host to me if it's not possible for you to transfer the sharing rights? Aditya? Meanwhile, the rights are being shared. Let me start with the topic first. Thank you. I'm muting my voice and I'll be available for the questions at the last. Thank you so much. Thank you, everyone. Yes, let me start with the topic then. As we all know,
today's topic is how to increase team productivity through morning huddle. The main agenda for taking this topic, हिंदी में बात करूँगा क्योंकि ज्यादातर लोग शायद वैसे भी है कि जिनको हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. क्यों हमने यही टॉपिक सिलेक्ट किया? सबसे पहले तो मैं जितने भी लोगों ने ये वेबिनार अटेंड करने के लिए अपना कीमती समय इन्वेस्ट किया है सबको थैंक यू कहूँगा. और स्टार्ट करूँगा अगेन टॉपिक से कि क्यों हमने यही टॉपिक सिलेक्ट किया और बाकी कोई अदर टॉपिक नहीं. रीजन यही था कि कोरोना के लंबे समय के बाद मार्केट वापस रीओपन हुआ है और जनरली वैसा होता है कि जब भी रीस्टार्ट कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो हमें काफी सारी चीजें नए तरीके से प्लान करनी पड़ती है. तो हमें एक ऐसा टूल या ऐसा एक प्रोसेस शेयर करना था ऑडियंस के साथ कि जो वो अपफ्रंट इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि जब तक आप ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते वो लर्निंग का कोई महत्व नहीं रहता, ऐसा हम लोगों का मानना है. Thus, we have chosen this topic कि हम वैसा कुछ शेयर करें कि जो प्रैक्टिकली एक तो इम्प्लीमेंटेबल हो, दूसरा जिसका एडवांटेज प्रूवन हमने कहीं और देखा हुआ है और उसका अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट हुआ है. Thus, हमने यही टॉपिक सिलेक्ट किया कि चलिए टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे बात करते हैं. ऑब्जेक्टिव पे आज के सेशन का अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेना चाहूंगा तो मेरे लिए मेजर 2 ऑब्जेक्टिव है. वन इज टीम का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, वो तो ऑब्जेक्टिव है ही. अब इसमें टूल हम मॉर्निंग हडल मीटिंग यूज करेंगे जैसा कि टॉपिक के अंदर शेयर हुआ था. और दूसरा टॉपिक मेरा दूसरा कंसर्न ये था, ये ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसा एक प्रैक्टिकल टूल एमएसएमई इंडस्ट्री उसके बिजनेसमैन एज वेल एज टीम मेंबर को दिया जाए कि जिससे वो डेली बेसिस पे प्रोडक्टिव है या नहीं है या क्या क्या चीजों में उनको प्लस माइनस करना पड़ेगा वो खुद ऑब्जर्व या एनालाइज कर पाए. आज कौन से मेन टॉपिक्स पे विल कवर. फर्स्ट इज व्हाट की प्रॉब्लम वी हैव ऑब्जर्व्ड. क्यों हमें लगा कि ये टूल शेयर करना चाहिए, क्या वैसे प्रॉब्लम्स है कि जो हमने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किए थे कि जिसका सॉल्यूशन शायद मॉर्निंग हडल मीटिंग के थ्रू आ सकता है. सेकेंड पार्ट वुड बी शेयरिंग द प्रोसेस हाउ टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस मॉर्निंग हडल प्रोसेस एंड इसको कैसे कल्चर में कन्वर्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के जिससे ये ऑटो रोटेशन में चलता रहे, मैन ड्रिवन ना हो, प्रोसेस ड्रिवन हो जाए. Third would be what I will love to share is benefits which we have observed कि जो इंडस्ट्री को लोगों को मिले ये पर्टिकुलर प्रोसेस जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है. यस Swag, sorry to interrupt, but I think your screen sharing is disabled as of now. I'm not so I'm getting messages from participants. They are not able to see your screen, so your presentation is not visible to them. अभी भी वही एरर आ रहा है मेरे भाई. होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. Just a moment. शेयर नहीं हुआ है. I'm making you host. Yes, please. Share the screen and then pass on the rights to me again. Yes, for sure. Is it possible now? Can you share the screen? Is it visible? Yes, it has started. Just make me host again so that people don't bother you with the other things. For sure, for sure. Yeah, thank you. Please go ahead. So objective मैंने already cover कर लिया है कि major objective is to share the process which is implementable, the result driven. Key topics as I have shared, key problem, most effective process of morning huddle क्या हो सकता है. Third would be the benefits which we have observed कि organizations को मिले हैं. And fourth would be टिप्स कि जब हम ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं तब कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें वैसे कि जिसको अगर ज़हन में रखा तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज हमें मिल पाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएगा. फर्स्ट मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं. जिनके लिए ये टॉपिक पूरा नया है, आज से पहले शायद सुना नहीं है, उनको पता नहीं है. व्हाट इज हडल. मॉर्निंग तो सबको पता है कि सुबह को मॉर्निंग कहते हैं, बट व्हाट इज हडल.
हडल का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो है अ क्लोज ग्रुपिंग ऑफ पीपल और थिंग्स। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को टीम में कन्वर्ट करना, उसका एक इंडिविजुअल या एक होलिस्टिक ग्रुप जनरेट करना। एंड थिंग्स इज द प्रोसेसेस और द वर्क और टास्क कि जो हम करते हैं उसको एक ग्रुप में लेके आना, एक साथ में उसको कवर अप करना कि जिससे सारी चीजें सिंक्रोनाइजेशन में चले। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हडल। इसीलिए इसको मॉर्निंग हडल कहा जाता है, क्योंकि हम हर सुबह लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करते हैं और जो जो काम ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करके उनको एक ग्रुप में डालने की प्रोसेस करते हैं। की प्रॉब्लम्स विच वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जिसकी वजह से मॉर्निंग हडल इंप्लीमेंट करना जरूरी है, या क्या की प्रॉब्लम्स जनरली रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रॉब्लम होता है कि हमने क्वार्टरली, एनुअल, मंथली गोल्स बना लिए, लेकिन वो मंथली गोल का जो भी मॉनिटरिंग होना चाहिए वो डेली गोल्स के साथ लिंक नहीं होता है। इसका सिंपली मतलब यही होता है कि जब आप वीक में रिव्यू करने बैठे या मंथ में एक बार रिव्यू करने बैठे, तब काफी सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डिले हो चुकी होती है कि जिसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज मोर लाइक ए नॉन इंटेंशनल टाइम पास का एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बन जाते हैं कि कल करूंगा। क्यों? क्योंकि आज का कोई टास्क डिफाइन नहीं है, हमने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया था, मेरा आज का टास्क पहले से प्लान्ड नहीं था, दस मैंने काफी सारी वैसी एक्टिविटीज कर ली कि जिसको ना भी करता तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना होता, बल्कि मैंने ये प्लान नहीं किया कि मैं कैसे वैसी टास्क करूं कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करे मेरे काम को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे वर्क प्रोफाइल को। ये प्लान नहीं हुआ तो नॉन प्लान एक्टिविटीज आ गई, जिसकी वजह से टाइम पास शायद हो गया, एक्टिव काम नहीं हुआ जो लिंक्ड था आपका ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या वीकली गोल्स के साथ। सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव ऑब्जर्व्ड इज टीम का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। टीम से यहाँ पे मेरा मतलब ये होता है कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए वो डेली बेसिस पे नहीं रहता है। अब इससे जनरली होता क्या है कि काफी बार सिर्फ क्लैरिटी ना होने की वजह से, एक दूसरे के साथ बातचीत ना होने की वजह से, उसका अप्रूवल ना मिलने की वजह से काफी सारी प्रोसेसेस लेंदी हो जाती है। ये प्रोसेसेस लेंदी ना हो इसके लिए भी, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मॉर्निंग हडल को यूज कर सकते हैं। थर्ड इज टाइमली करेक्शंस एंड अप्रूवल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? अगर हमें ये पता चल गया कि जिस तरीके से काम जाना चाहिए था, जिस तरीके से हमने प्रोसेस या टास्क प्लान किया था, उस तरीके से जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो उसके अलाइनमेंट में नहीं है, अगर हमें आज के आज उसका पता चलता है तो आज के आज हम उसको करेक्ट कर लेंगे, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, जिससे कि उसमें जो भी रिसोर्सेस इन्वेस्ट होने वाले थे वो हम बचा पाएंगे, इंक्लूडिंग टाइम इन्वेस्टमेंट। काफी बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे अप्रूवल्स होते हैं कि जो टीम सिर्फ वेट करती रहती है कि इसका अप्रूवल मिलेगा तो मैं आगे कुछ काम करूं, लेकिन वो अप्रूवल या तो देने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, या तो उन्होंने राइट तरीके से ऑन द स्पॉट मांगा नहीं है, रिपीटेडली उसको फॉलो थ्रू में नहीं लिया है। अगर ये चीजों को भी हमने मॉर्निंग हडल के अंदर कवर अप कर लिया तो ये चीजें भी, इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। अनदर प्रॉब्लम विच वी हैव ऑब्जर्व्ड इज ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव न्यूज या स्मॉल अचीवमेंट्स ज्यादातर जगहों पे शेयर नहीं होता है। इसके लिए अच्छे एक टाइम का हम वेट करते हैं कि चलिए कोई एक एक्टिविटी प्लान करेंगे, एनिवर्सरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बर्थडे आ रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ इवेंट का हम वेट करते हैं। क्योंकि काफी बार टीम के मोटिवेशन के लिए डेली स्मॉल डोजेस ऑफ अचीवमेंट्स एंड पॉजिटिव नोट्स मिलना या जरूर, अगर ये टाइमली शेयर हो जाता है तो बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। व्हाई? मान लीजिए कि किसी टीम मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया, आपने ये अपॉर्चुनिटी को ऑन दी स्पॉट एनकैश ना करके इसको डिले कर दिया एक वीक के बाद, इसके इन बिटवीन अगर और कोई अचीवमेंट आ गया तो शायद पॉसिबिलिटी है कि जिस टीम मेंबर ने अच्छा काम किया था वो एप्रिसिएशन होना ही रह जाए। इसे होगा ये अल्टीमेटली कि टीम को ये लगेगा कि मैं कितना भी काम करूं एप्रिसिएशन नहीं मिलता, अगर मुझे पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं मिलते तो उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। दीज आर द की प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव ऑब्जर्व्ड, जिसको मॉर्निंग हडल से हम कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं। अब मैं आता हूं डायरेक्टली प्रोसेस पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बाकी सारी बातों में। प्रोसेस क्या होना चाहिए? जिन लोगों ने ऑलरेडी मॉर्निंग हडल मीटिंग इंप्लीमेंट की है उनको ये प्रोसेस ऑलरेडी पता है, शायद इसमें एक या दो स्टेप प्लस माइनस हो सकता है। फर्स्ट वुड बी, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक
एरिया जो आपका ऑफिस हो सकता है या आपका कोई भी एक वर्क प्लेस एरिया हो सकता है, उसको आपको डिफाइन करना है कि जहां पे डेली फिक्स टाइम पे टीम इकट्ठा होगी। टीम से मेरा मतलब है स्पेसिफिक टीम। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट अलग जगह पे मिल सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग जगह पे मिल सकता है, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट शायद अलग जगह पे मिल सकता है अगर टीम अपने पास बड़ी है। तो अगर छोटी टीम है तो सारी टीम एक ही जगह पे इकट्ठा हो सकती है। क्यों लोकेशन और टाइम फिक्स करना जरूरी है? टाइम फिक्स होगा तभी पंक्चुअलिटी ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगी आपको, प्लस टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। मीटिंग टाइम से स्टार्ट होगी और मीटिंग टाइम से खत्म भी हो जाएगी। डिफाइन लोकेशन क्यों? जिससे कि ये डिस्कशन का पॉइंट ही ना बने कि कहाँ पे मिलना था मुझे पता नहीं था, वो पहले से डिफाइन होगा, यहाँ पे इतने बजे मिलना है, डेली हमें आना है, दैट्स ऑल। सिंगल लाइनर इंस्ट्रक्शन की जो फॉलो हो सके। नेक्स्ट स्टेप वुड बी किसी एक पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी टास्क, जो भी डिपार्टमेंट ले रहा है, जो भी बंदा ले रहा है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। डॉक्यूमेंट क्यों करना है वो मैं आगे के प्रोसेस में ज्यादा डिटेल में कवर करूंगा। सो एक मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, क्या टास्क ली गई है, किसके थ्रू, कौन से डिपार्टमेंट में। हर एक टीम मेंबर को जनरली 1 ही मिनट दिया जाता है, लेकिन बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन साइज 1 या 2 मिनट का टाइम दिया जाता है हर टीम मेंबर को बोलने के लिए। अब यहाँ पे क्या शेयर करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जानना है कि ये मॉर्निंग हडल मीटिंग में 1 मिनट के टाइम में हमें क्या बोलना है या पर्सन क्या बोलेगा, डिपार्टमेंट में से कौन सी डिटेल्स आनी चाहिए। फर्स्ट वुड बी, अगर मैंने कल के दिन में, कल के वर्किंग डे में, संडे अगर छुट्टी है तो सैटरडे अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट अचीव किया था तो सबसे पहले वही से शेयरिंग स्टार्ट होगा कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट मैंने अचीव किया है। नेक्स्ट वुड बी, आज के मेरे डेली के टास्क क्या है, आज मैं क्या करने वाला हूं, और इसमें आपको नंबर्स ऐड करने हैं। अगर यहाँ पे नंबर्स ऐड नहीं हो रहे तो चार्म नहीं रहेगा मॉर्निंग हडल मीटिंग का। नंबर्स आर मस्ट टू हैव। मैं आगे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स हम कैसे इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। थर्ड विल बी challenges the person is facing। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरे काम को लेके कोई एक चैलेंज फील कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, और जिसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पे वो चैलेंज भी टीम के सामने रख दिया जाएगा, जिससे हर एक के व्यूज और हर एक का सपोर्ट यहाँ पे कोलैबोरेशन में लिया जा सके। चैलेंज सामने आएगा तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। एंड सपोर्ट इज नीडेड। पर्टिकुलर टीम मेंबर को अपना टास्क और इफेक्टिव करने के लिए कहां कहां पे सपोर्ट की जरूरत है, प्लस अप्रूवल्स की जरूरत कहां कहां पे। इससे ये क्लैरिटी आ जाएगी मॉर्निंग में 1 मिनट के टाइम के दरमियान ही कि कल के दिन में क्या पॉजिटिव हुआ था, आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज पर्टिकुलर टीम मेंबर के थ्रू की जाने वाली है, चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जिसका सॉल्यूशन हमें एज ऑर्गेनाइजेशन, एज टीम देना है, एज बॉस देना है, एज एचओडी देना है, एंड उसको क्या सपोर्ट चाहिए ये पर्टिकुलर एक्टिविटी और रिजल्ट ड्रिवन करने के लिए या टाइमली कंप्लीशन के लिए। लेट अनदर स्टेप वुड बी दी रूल्स ऑफ डेली हडल मीटिंग। देयर आर 7 रूल्स जो हमें फॉलो करने मॉर्निंग हडल मीटिंग अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो। फर्स्ट इज द मीटिंग शुड बी स्टैंड अप ओनली। ये मीटिंग बैठे बैठे नहीं हो सकता। मॉर्निंग हडल मीटिंग आपको खड़े खड़े ही करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सारे लोग खड़े हो गए तो ऑन द स्पॉट ज्यादा डिस्कशन में ना जाते हुए क्रक्स पे, की प्रॉब्लम्स पे, की पॉइंट्स पे ही डिस्कशन होगा। इसके लिए इसको स्टैंड अप मीटिंग में लेके जाना है, जिससे एनर्जी भी हाई रहेगा। अर्ली मॉर्निंग सबका एनर्जी हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वुड बी कीप इट शॉर्ट। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा टाइम किसी एक टीम मेंबर को नहीं देना, और सारे डिपार्टमेंट का रिव्यू आपका 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा का टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको स्टैंड अप मीटिंग भी रखना है और शॉर्ट भी रखना है। नेक्स्ट वुड बी स्टार्ट ऑन टाइम। जो मैंने पहले ही कहा कि प्री डिफाइंड टाइम शेड्यूल आपको फिक्स करके चलना पड़ेगा कि कितने बजे ये पर्टिकुलर मॉर्निंग हडल मीटिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद वहां पे नो एंट्री। मीटिंग स्टार्ट अगर टाइम पे होगा तो टाइम पंक्चुअलिटी का जो कल्चर हमें इम्बाइब करना होता है टीम मेंबर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑटोमेटिकली इम्बाइब होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वुड बी स्टिक टू द एजेंडा। जो मैंने पॉइंटर शेयर किए उसके बाहर का कोई भी पॉइंट इसमें ऐड नहीं करना है मॉर्निंग हडल मीटिंग में। मॉर्निंग हडल मीटिंग को स्ट्रिक्टली एजेंडा बेस्ड ही रखना है। एजेंडा से बाहर का कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए मॉर्निंग हडल मीटिंग में। शेयर विक्ट्रीज ये ऑलरेडी मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में आगे कवर कर लिया है।
स्टार्ट ही आपको विक्ट्री से करना है। क्यों? पॉजिटिविटी अगर मेंटेन होगी तो टीम को मजा आएगा, टीम ज्यादा एंगेजमेंट लेगी, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेगी और अटेंडेंस भी रहेगा। काफी बार ये देखा गया है कि जब मॉर्निंग हडल मीटिंग स्टार्ट होती है और अगर वहां पे विक्ट्री शेयर नहीं हो रही है, अचीवमेंट शेयर नहीं हो रहा है, तो टीम को धीरे धीरे ये बोरिंग लगने लगता है, इसमें मजा नहीं आता और उसमें बाद में अटेंडेंस भी नहीं रहेगा और चार्म भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली प्रोसेस जो बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकता था वो प्रोसेस ही वहां से इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कल्चर वही है कि जो आपकी टीम बनाती है, जो आपकी टीम फॉलो करती है। अगर उनको मजा नहीं आएगा तो वो कल्चर कभी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। दस वी वांट टू हैव विक्ट्रीज ऑन हैंड विच वी शेयर ऑन डेली बेसिस। शेयर प्रायोरिटीज, इसको मैं आगे कवर करूंगा कि प्रायोरिटीज हमें कैसे कवर करना है। एंड स्टक्स जो मैंने कहाँ पे अटकी हुई है ये भी अगर शेयर हो जाता है तो एज एचओडी, एज डिपार्टमेंट हेड, एज बिजनेस ओनर विल बी एबल टू सॉर्ट हेल्प देम आउट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट सबका फेवरेट होता है। ये डिपार्टमेंट वैसा है कि जो पैसा लेके आता है बिजनेस में। दस सेल्स डिपार्टमेंट का अगर मॉर्निंग हडल मीटिंग होगा तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय इसको कैसे पोर्ट्रे करेगा। काफी बार ये भी कंफ्यूजन होता है, 1 मिनट तो सोचने में या बोलने में ही निकल जाएगा, इसमें हम क्या क्या बोले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेल्स का बंदा हूं तो मैं कैसे अपनी मॉर्निंग हडल मीटिंग में कवर अप करूंगा। मैंने कल 2 लीड्स क्लोज की जिसका वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए था। आज मैं 5 नई लीड्स को फॉलो अप करने वाला हूं। आज मेरी 2 पर्सनल विजिट्स है। आज मैं नए 4 कोटेशन फॉरवर्ड करूंगा, ये मेरा टारगेट है। आज मेरा क्लोजिंग का एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1 CR रुपीज एंड आज मैंने 50 लाख रुपए रिकवर करने का टारगेट मेरे अंडर में लिया हुआ है। प्लस 2 कोटेशन में मुझे मेरे एचओडी का हेल्प चाहिए फाइनलाइजेशन प्राइसिंग के लिए, क्योंकि वो प्राइसिंग मैंने मेरे तरीके से तो रखे लेकिन अभी तक उसका अप्रूवल कोटेशन का मेरे एचओडी के पास से आना बाकी है, तो वो अप्रूवल के लिए मैं अवेट कर रहा हूं। एंड मिहिर का मुझे हेल्प चाहिए एक मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रिफाइनिंग टर्म्स और कंडीशंस के लिए। मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रिफाइन करने हैं एज पर दी कम्युनिकेशन विद कस्टमर, तो उसमें मुझे मिहिर का हेल्प चाहिए। कितना टाइम लगेगा इसमें? लेस देन 1 मिनट। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर ये स्ट्रक्चर्ड है तो, अगर ये डेटा ड्रिवन है तो। लेकिन अगर ये डेटा ड्रिवन नहीं है दोस्तों तो ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि उसमें स्टोरी होती है, स्टोरी का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। जबकि हमें यहाँ पे कंक्लूजन पे ज्यादा बातचीत करना है, मेजरेबल गोल्स पे ज्यादा बात करना है। दैट इज द चार्म ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप आएगा इसके बाद, एचओडी क्या करेगी इसके बाद। टीम ने तो अपना व्यू बता दिया, तो एचओडी का क्या रोल रहेगा ये पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट का एचओडी भी वहां पे हाजिर होगा जिसको ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अल्टीमेटली ही वुड बी द ओनर ऑफ दैट दोज टास्क जो उसकी टीम ने लिए है। एचओडी क्या करेगा? एचओडी को डबल टाइम मिलेगा जो हमने सेट किया है उससे। मान लीजिए कि टीम के लिए हमने 1 मिनट डिफाइन किया है तो एचओडी को हम 2 मिनट देंगे। अगर टीम के लिए 2 मिनट दिए हुए तो एचओडी को हम 4 मिनट देंगे। वो क्या शेयर करेगा, एचओडी क्या बोलेगा ये पर्टिकुलर मॉर्निंग हडल मीटिंग आने के बाद। सबका व्यू शेयर हो गया, लास्ट में एचओडी इसको समअप करेगा। समअप के लिए वो क्या बोलेगा कि कल हमारी टीम ने सब कुछ मिला के क्या क्या अचीवमेंट लिए, तालियां बजाइए। सो समवेयर यहां से पॉजिटिव स्ट्रोक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है टीम को। दस कल टीम ने मिलके क्या अचीवमेंट किया, इंडिविजुअल ने तो जो किया वो उसने शेयर किया, लेकिन टीम ने मिलके क्या अचीव किया ये एचओडी वहां पे शेयर करेगा, जिससे टीम और पॉजिटिव हो जाए और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए। नेक्स्ट वुड बी, अगर किसी ने जो भी टास्क जो शेयर किया था कि आज मैं ये काम करने वाला हूं, उसमें रीअलाइनमेंट की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है, तो ये चीजें एचओडी के थ्रू शेयर की जाएगी कि भाई देख सुहाग, तूने आज ये 2 लीड का जो फॉलोअप तेरे हाथ में लिया हुआ है, मैं चाहता हूं तो उसमें एक और लीड तू ऐड कर ले। ये लीड शायद तेरे लिस्ट में मुझे नहीं दिखी है, अगर है तो ओके, नहीं है तो तू ये 3 लीड पे आज काम कर, वैसा मैं चाहता हूं। 2 कोटेशन में से तू 1 कोटेशन आज क्लोज करने का ट्राई कर, मतलब रीअलाइनमेंट करना है। जो टास्क ऑलरेडी लिए गए हैं टीम के थ्रू, उसमें अगर कुछ भी चेंज करने की जरूरत है वो एचओडी शेयर करेगा कि मैं चाहता हूं कि आप ये टास्क लो। अगर वो अग्रीमेंट में आता है तो वो टास्क लिस्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट वुड बी, एचओडी क्या करेगा, सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और साथ में शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स टीम का मीटिंग था
और सेल्स में सबने मिला के आज के दिन में ही 10 करोड़ का टारगेट लिया हुआ है। तो व्हाट आई विल शेयर इज कि आज हमारी टीम 10 करोड़ रुपए का सेल्स टारगेट लेके चल रही है। आज हमारी टीम मिलके 25 मीटिंग करने वाली है। आज हमारी टीम मिलके 46 कॉल्स करने वाली है। इस तरीके से ये एक बड़ा पिक्चर बन जाएगा कि कैसे टीम का रिजल्ट क्यूमुलेटिव जब होता है तब बहुत बड़ा रिजल्ट जनरेट करता है। ये टीम के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि इंडिविजुअली मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सब लोग मिलके हम कितना कर सकते हैं, और यहीं से टीम वर्क आएगा। जो जो कल्चर हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ये सारे प्रोसेसेस के थ्रू हम बहुत अच्छे से ये कल्चर को वीव कर सकते हैं पूरी प्रोसेस में। एंड एचओडी की तरफ से क्या सपोर्ट एक्सटेंड होगा कौन से टीम मेंबर को कौन से टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी एक टीम मेंबर को मेरा सपोर्ट चाहिए था पर्सनल विजिट में, आई विल अग्री अपॉन इट अगर मैं वहां पे जाने वाला हूं तो, कि देख भाई तूने ये मुझसे सपोर्ट मांगा था कि आपको ज्वाइंट मीटिंग में मेरा भी जरूरत है, आई विल बी देयर विथ यू। ये कोटेशन में ये अप्रूवल में आपको मेरी जरूरत है, दैट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। आपको ये ट्रेनिंग का जरूरत है, दैट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड और प्लान समवेयर टू एंश्योर कि आपने सारी चीजें सुनी भी है और आप वो चीजों में सीरियसली उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, ये फील देना। क्योंकि एज एचओडी हमारा मेजर रोल वही होता है कि टीम को अलाइनमेंट में रख के उसका एक कंबाइंड रिजल्ट जनरेट करवाना, टीम को मोटिवेट रखना, उनको पॉजिटिव रखना, ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मेरी टीम का मीटिंग खत्म हो गया, सारे एचओडीज का आपको एक और मीटिंग प्लान करना है। मतलब अब यहाँ पे एचओडी का मीटिंग होगा और सेम तरीके से वो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। हर एचओडी को एक एक मिनट बोलने को दिया जाएगा, जहां पे वो अपने डिपार्टमेंट का क्यूमुलेटिव गोल शेयर करेंगे। वही प्रोसेस में अचीवमेंट क्या रहा, आज का हमारे टीम का होलिस्टिक टारगेट क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं इन फिगर्स, ये शेयर होगा। एंड अगेन एचओडी का जो एचओडी होगा या खुद बिजनेस ओनर भी हो सकता है, वो वहां से पॉइंट्स गैदर करके उसको वापस सम अप करेगा कि एज दी होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी गोना डू, व्हाट वी गोना अचीव बाय एंड ऑफ द डे टुडे, ये कैसे हमें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, कौन से और गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, रीअलाइनमेंट करने की क्या जरूरत है, ये सारी चीजें एचओडी का एचओडी या बिजनेस ओनर क्लब करेगा। दिस इज द प्रोसेस फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो इससे क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर ऐसा कोई प्रोसेस हमने इंप्लीमेंट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या बेनिफिट्स हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। क्विक प्लीज। Yeah, so Vishnu says that will improve the productivity. Wonderful. Thanks, Vishnu ji. That will also update, so updated communication across all team members. Wonderful. Ashley says better understanding of each other in the team. Wonderful. Yes. Kapil ji says easy for team to achieve goals. Agreed. Hiral ji is saying full day planning will be done in first hour of the office. 110%. Shabir ji is saying better collaboration across departments. Yes, Shabir ji, thank you. Ajay is saying all company will run towards one goal in one direction. Wonderful. Precisely yes. Precisely yes. Ricky is saying that everyone is on the same page. Jatin ji is saying discipline in work helps us to improve business. Truly. Motivation will be high at high levels. Satyanarayana is saying target orientation will move towards the target. Yes, wonderful. Yes, yes. Rahul is saying team spirit. 110% yes, will be achieved. Ashley is saying understand the power of teamwork. Exactly, exactly, exactly. So somewhere happy to see all these responses. अब यहाँ पे अगर आप इसको होलिस्टिक थोड़ा सा और मैक्रो पिक्चर में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे, मेजोरिटी ऑफ द, सारे नहीं, क्योंकि एक दवाई से सारे इलाज नहीं हो सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इससे जो टीम वर्क का एक कल्चर हमें बाउंड करना है, टाइम पंक्चुअलिटी का जो एक कल्चर बाउंड करना है, वो यहाँ से 110% हम प्लान कर सकते हैं।
what benefits we have observed, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कवर कर ही लिए, बट देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर कि कहाँ हमने ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से बेनिफिट्स हमने ऑब्जर्व किए. फर्स्ट इज इम्प्रूव टीम वर्क, जो सबने कहा. इफेक्टिव सपोर्ट एंड अप्रूवल मैकेनिज्म, ये हमने देखा कि सपोर्ट एंड अप्रूवल मैकेनिज्म बहुत क्विक होगा, एकदम फास्ट. आज पता चला 1 घंटे में तो मैटर क्लोज. सो टीम इज चार्ज विथ ऑल दी अप्रूवल्स. पूरे दिन सिर्फ उनको एग्जीक्यूशन करना है, अप्रूवल का वेट करना ही नहीं है. दैट वी हैव सीन. थर्ड इज अननेसेसरी ईमेल्स एंड कम्युनिकेशन टाइम विल बी सेव्ड. काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारा कोरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, फॉलो थ्रू, फॉलो अप चलता रहता है एक टास्क पे, क्योंकि वो डिस्कस ही नहीं हो रहा है कहीं पे, वो सिर्फ ईमेल पे चल रहा है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहा है. सो ये सारा कम्युनिकेशन का टाइम सेव हो जाता है इससे, क्योंकि डेली सुबह ये सारे पॉइंट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. डेली क्लियर रिजल्ट ड्रिवन गोल्स, किसी ने ये भी लिखा हुआ था शायद कि टीम गोल्स के लिए ही काम करेगा. इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मेरा कोई भी टीम मेंबर टाइम पास के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आ ही नहीं रहा है. उसको पता है कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, क्या रिजल्ट जनरेट करना है. एंड रिटन गोल्स आर देयर, दे हैव टू डू इट, दे विल डू इट, क्योंकि वो गोल्स उन्होंने फाइनलाइज किए हुए हैं. कमिटमेंट ड्रिवन कल्चर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को मिला है. ये पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पे भी इंप्लीमेंट किया हम लोगों ने, कमिटमेंट ड्रिवन कल्चर बिल्डिंग हो गया है. सब एम्प्लॉइज को ये आदत हो जाता है कि रोज सुबह हमें कमिटमेंट लेना है और शाम तक उसको कंप्लीट करना है, रोज सुबह कमिटमेंट लेना, उसको शाम तक कंप्लीट करना है. और यही से उसका वीकली और मंथली टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव होता है. क्यों? वो डेली टारगेट अचीव कर रहा है, एटलीस्ट 70%, 80%, 90%. Next benefit we have observed is each team member will be clear with others work occupancy. काफी बार ये होता है कि मुझे पता ही नहीं कि बाकी लोग कहाँ बिजी है. अगर मुझे पता नहीं तो मैं उसको सपोर्ट कैसे करूंगा, मैं राइट जगह पे उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ये पर्टिकुलर प्रोसेस से, कि सारे टीम मेंबर क्लियर होते हैं कि आज बाकी सब लोग कहाँ पे बिजी है, कहाँ पे एंगेज है. मुझे अगर उसका एसोसिएशन या एंगेजमेंट कहीं पे चाहिए तो मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ, मुझे उसको डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मेंस विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम सिस्टम. ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है. जब आपके यहाँ एक ऐसा कल्चर इंप्लीमेंटेड है कि जहां पे डेली गोल्स लिए जाते हैं, बॉस नॉन परफॉर्मर नहीं टिक सकता वहां पे, बातें करने वाले नहीं टिक सकते वहां पे. क्यों? उसे डेली गोल्स लेने हैं, कितने दिन गोल्स लेके अचीव नहीं करेगा. सो सिर्फ परफॉर्मेंस ही बचेगे, परफॉर्मर्स ही बचेगे आपकी टीम में. और ऑब्जेक्टिव हमारा मॉर्निंग हडल आज के प्रेजेंटेशन में लेने का यही था कि हमें परफॉर्मर टीम चाहिए. अब परफॉर्मर टीम तभी बनेगा कि जब डेली गोल्स लिए जाते हैं, उसको अचीव किया जाता है. नॉन परफॉर्मर वहां पे टिक ही नहीं सकता, ये कल्चर उसको राज नहीं आएगा. यस, एंड ये भी एक एडवांटेज हमने बहुत ज्यादा देखा हुआ है कि काफी टीम मेंबर्स, ज्यादातर टीम मेंबर्स, अदर में काफी नहीं होगा, ज्यादातर टीम मेंबर्स अपना नेक्स्ट डे का गोल सेम डे इवनिंग को प्लान करके छोड़ देते हैं. अब इससे हो क्या रहा है कि एक मैंने सुबह में गोल लिया, रात को रिव्यू कर लिया और नेक्स्ट डे के गोल्स मेरे पाइपलाइन में आ भी गए. क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे प्रोडक्टिव रहता है, रात के टाइम में उसका मेजोरिटी एग्जीक्यूशन प्लानिंग हो जाता है सोते सोते, नींद में भी उसका प्लानिंग हो जाता है. तो नेक्स्ट डे वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है क्या करना है क्या नहीं करना है. इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है. यस, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, एचओडीज का सबसे बड़ा एडवांटेज है. हर टीम मेंबर का कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हमें पता चलेगा, कौन से बंदे में क्या कैपेसिटी है, वो कितना कैपेबल है पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उसको मुझे कहाँ ट्रेन करने की, कहाँ गाइड करने की जरूरत है. अगर ये असेसमेंट मेरे पास डेली हो रहा है तो मैं उसको राइट एरिया में गाइड कर पाऊंगा, राइट एरिया में उसको डाइवर्ट कर पाऊंगा, जिससे कि उसकी स्किल्स और एनहांस हो, अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. एंड ऑर्गेनाइजेशन विल टेक रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म गोल्स. काफी बार ये होता है कि स्मार्ट गोल्स हम लोग नहीं लेते, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक. जब हमें हमारा एग्जीक्यूशन कैपेसिटी पता होगा कि डेली मेरा टीम इतना काम कर सकती है, तो मैं और रियलिस्टिक गोल्स बनाऊंगा जो अचीवेबल होंगे, जो मैं अचीव कर ही लूंगा. ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि रियलिस्टिक पिक्चर्स पे गोल लिए जाए, जिससे टीम का मोटिवेशन कांस्टेंट अप रहे. दीज आर द बेनिफिट्स. बाकी सारे बेनिफिट्स तो चैट बॉक्स में काफी सारे आए ही है. लास्ट एरिया ऑफ द सेशन टुडे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शायद मैं ये प्रेजेंटेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये पर्टिकुलर 2 या 3 स्लाइड्स को दूंगा. हमें क्या ध्यान रखना है ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के टाइम पे. फर्स्ट इज
please take care. That morning huddle meetings are not your weekly or monthly review meetings. ये आपकी वीकली और मंथली रिव्यू मीटिंग नहीं है. इसको रिव्यू मीटिंग मत बनाइए, इसको पॉजिटिव चार्जिंग मीटिंग रखिए, इसको डेली टारगेट ओरिएंटेड मीटिंग रखिए. इसको रिव्यू मीटिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिव्यू मीटिंग आपके पास ऑलरेडी मंथली वीकली है. उसको वैसे ही कंटिन्यू रखो, तब आप रिव्यू करो. ये रिव्यू करने के लिए नहीं. नेक्स्ट इज encourage everyone to attend the daily huddle meeting. It is your role as HOD or as business owner to define certain rules, regulations, processes, incentives, whatever is needed to encourage team member to attend this meeting. डेली वहां पे बंदा होना चाहिए तो होना चाहिए बाय एनी मीन. उसके लिए जो करना पड़े वो करो. क्यों? जो एम्प्लॉय ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा. ये गारंटीड है. Third is break the ice by beginning the discussion with good news that brings positive vibes. कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ये रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. सिंपली हमें डिस्कशन पॉजिटिव नोट से ही स्टार्ट करना है हर एक को. अगर ये पॉजिटिव नोट से स्टार्ट नहीं हो रहा, सॉरी, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. ये प्रोसेस आपको रिजल्ट नहीं देगा. आपको पॉजिटिव चीजों को ही शेयर करना है. नेक्स्ट इज डेली हडल मीटिंग को हमें कैसे यूज करना है. इट शुड बी यूज्ड एज, मैं मेरे कलीग को और अच्छे से कैसे जान सकता हूँ पर्सनल लेवल पे. ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब आपको उसके प्रोस कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलने का टोन, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें जानने को मिलती है. इसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं. आगे के शायद क्वेश्चन आंसर में इसको मैं थोड़ा सा और ड्रिल ऑन करूंगा. Next is, it is very much important to document what was discussed. अगर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ये प्रोसेस आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा. क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली मेजरमेंट के लिए भी वो डॉक्यूमेंटेड चाहिए कि कितने टास्क लिए गए तो उसके सामने कितने अचीव हुए, कौन सा मेरा एम्प्लॉय कितने टास्क अचीव कर रहा है, कौन से क्वालिटेटिव टास्क ले रहा है, कौन क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स नहीं ले रहा है. और वहां पे ही हमारा रोल बनता है उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना. नेक्स्ट इज, if possible सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज कीजिए मॉर्निंग हडल मीटिंग के टास्क को डॉक्यूमेंट करने के लिए, या इसको आप गूगल डॉक पे भी डाल सकते हो. जिसको आपने ये एक्टिविटी दिया हुआ कि भाई आपको नोट मार्क रखने या नोट्स रखने, वो गूगल डॉक में ये टास्क बनाता चला जाएगा और हर एक को अलॉट करता जाएगा. इससे ये चीजें डॉक्यूमेंट हो जाएगी और शाम को आपको सामने सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट डालना है. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि डे एंड में आपके पास अगर ये रिपोर्ट आ जाता है टीम की तरफ से कि सुबह मैंने ये गोल लिए थे, उसके सामने मेरे ये रिजल्ट्स अचीव हुए, ये गोल्स अचीव हुए, यू विल बी बेटर इन पोजीशन कि जब आपके पास डेटा होगे नेक्स्ट डे टीम से पहले शेयर करने के लिए. अगर कोई पॉइंट कोई टीम मेंबर भूल भी जाता है तो आपके पास पॉइंट होगा शेयर करने के लिए. यू विल बी प्रिपेयर्ड. और इससे टीम को ये दिखेगा कि हाँ, मेरा एचओडी मेरा परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा है. Next is, daily huddle is not the right venue to investigate issues or to scold employees. It is not the platform. ये सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए है जिससे पूरे दिन एनर्जी रहे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट इश्यू को नहीं कर सकते. मतलब ये आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते कि भाई कल ये तूने बोला था लेकिन ये तूने अचीव नहीं किया, ये तेरे से नहीं हुआ. ये राइट वेन्यू नहीं है. ये आपका टीम वर्क का कल्चर जो है उसको डिसॉल्व कर देगा, उसको गायब कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में से. इसके लिए इन्वेस्टिगेट नहीं करना है मॉर्निंग हडल में. उसके लिए आपके पास वीकली मीटिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, मंथली मीटिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए. स्कोल्डिंग नहीं करना है. जैसा 1 मिनट मैनेजर में वी राइटली नो के हम कहते हैं कि रिप्रीमेंड हमेशा पर्सनल में देना चाहिए आपको. ये सारी प्रीमेंड एंड रिप्रीमेंड का अल्गोरिदम उस तरीके से प्लान है और उसी तरीके से फॉलो होना चाहिए. जैसे ही ये प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा तब टीम खुद ऑब्जर्व करेगी कि काफी सारा कम्युनिकेशन में जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम अब बचने लगा है और इंटरप्शंस कम हो गए. लोगों के बात में आके पूछना कम हो गया है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का कल्चर गायब हो गया. और जब ऐसा कोई भी पॉइंट आपके सामने आता है एज एचओडी और एज बिजनेस ओनर, आपको इसे अप्रिशिएट करना है. थैंक यू वेरी मच, वी आर ग्लैड कि आपने ये ऑब्जर्व किया एंड यस वी रियली लाइक इट. इससे ये पॉजिटिव वाइब्स ऑटोमेटिकली बाकी सारे टीम मेंबर्स में भी ट्रांसफर हो गए. Yes, here I will complete my presentation and I would like to take the questions now.
मीर भाई, ओवर टू यू सर। Thank you so much, Suhag. It was a wonderful session as always. थैंक यू। बहुत सारे insightful चीजें आपने बताई, जहाँ से I'm sure जो भी feedback आ रहे हैं, जो भी इन लोगों ने benefits बताए, आपने भी बताए, I'm sure उससे बहुत सारा फायदा होगा। Moving to the questions now, जैसे हमने आगे practice की थी, we have already some questions in our portfolio, जहाँ पे हमने कुछ questions जो है वो advance में लिए थे। So I'll share the first question. Majority हमने जैसे this is for participants, majorly जो भी questions आए थे advance में, उनके base पे ही हमने content design किया है। So जो भी questions अभी recently आए हैं that I'm putting across to Swag. The first question is Swag. Yes. How this morning hurdle can be useful in this work from home situation? So बहुत सारे लोगों के लिए अभी challenge रही होगी कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से only 50% स्टाफ इज अलाउड। अगर कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम में भी है और घर से भी ऑफिस से भी काम कर रहे हैं, तो हाउ दैट मॉर्निंग हडल कल्चर शुड बी डेवलप और वो कैसे हेल्पफुल रहेगा? जिसने भी ये सवाल पूछा है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल और टाइम के हिसाब से एकदम परफेक्ट सवाल है। What we are doing is, हमने मॉर्निंग हडल मीटिंग को जो पर्सनल ग्राउंड पे करते थे उसको वर्चुअल कर दिया है। नथिंग इज चेंज मच, बट इसमें आप थोड़ा सा स्पाइस अप कर सकते हैं ये चीजों को, क्योंकि टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। इसको आप कॉफी मीटिंग कर सकते हैं, टी मीटिंग कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टुगेदर करके एक मीटिंग लॉन्च कर सकते हैं, जहां पे ये सारा डिस्कशन हो रहा है और मूड भी लाइट रह रहा है, क्योंकि वो घर का भी थोड़ा सा माहौल उसको मोटिवेट करता होगा, ड्राइव करता होगा। तब हमें ऑर्गेनाइजेशन और घर का जो माहौल है, दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर या कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। हाँ, रूल्स आर दी सेम, टाइम पे स्टार्ट करना है तो करना है। वीडियो कॉल में ये टूल आप कोई भी यूज करें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ड्यूओ पे लीजिए, गूगल कॉल पे लीजिए, स्काइप पे लीजिए, वॉट एवर मीडिया इज कंफर्टेबल टू यू, वो आप मीडिया यूज कर सकते हैं। लेकिन थंब रूल्स आर सेम, टाइम से स्टार्ट होगा, हर एक को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए, और उसको कंक्लूड एचओडी को करके वो कंक्लूड वहीं पे करना है। तो ये 110% वर्क फ्रॉम होम में भी हो ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं, इफेक्टिवली कर रहे हैं। यस मीर भाई। या थैंक यू। सो अनदर क्वेश्चन जो अभी आया भी है और हमारे लिस्ट में भी था, कैन मॉर्निंग हर्डल बी यूज्ड फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग? ये दो सवाल। और थर्ड जो मैं उसके अंदर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कैन मॉर्निंग हर्डल बी यूज्ड फॉर व्हाइट कलर एज वेल एज ब्लू कलर एम्प्लॉयज? तो जो वर्कर लेवल के एम्प्लॉयज है उसके लिए भी क्या हम यूज कर सकते हैं? इसको मैं अगर वन लाइनर में जवाब देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जहां पे भी ह्यूमन रिसोर्स है वहां पे मॉर्निंग हडल मीटिंग हो सकता है। इंडस्ट्री कोई भी है, बिजनेस कोई भी है, कैसा भी है, किसी की कोई सी भी साइज का है, कितना भी बड़ा क्यों ना, कितना भी छोटा क्यों ना, हर जगह पे मॉर्निंग हडल मीटिंग इंप्लीमेंट हो सकता है जहां पे ह्यूमंस आर इन्वॉल्व। अगर बंदे हैं, मॉर्निंग हडल मीटिंग होना चाहिए। 110% ये एप्लीकेबल है हर इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का हो, सर्विस इंडस्ट्री का हो, आईटी इंडस्ट्री का हो, व्हाट नॉट, कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें मॉर्निंग हडल मीटिंग हो सकता है। ओके, तो इज देयर एनी डिफरेंस जहां पे अगर समझ लो हम सर्विस इंडस्ट्री में है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसमें कोई बेसिक डिफरेंस होता है, कैसे उसको कंडक्ट किया जाता है? यस, बेसिक डिफरेंस मेजरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दैट इज जब हम एचओडीज का मीटिंग क्लब करते हैं तब होता है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में क्रॉस जो डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। हर एक डिपार्टमेंट का खुद का एक पोर्टफोलियो होता है, खुद का एक पूरा केआरए केपीआई के ऊपर वो लोग काम करते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रॉस डिपार्टमेंट का एल्गोरिथम एक दूसरे के साथ वीव्ड होता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स का ऑर्डर है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी लिंक्ड होगा, डिस्पैच के साथ भी लिंक्ड होगा और कलेक्शन के साथ भी लिंक्ड होगा। ये एक ही डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर ये सबका एचओडीज का मीटिंग क्लब होके वहां पे कंक्लूजन कुछ नहीं आ रहा है, तो मॉर्निंग हडल का जो रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मिल सकता है वो नहीं मिलेगा, जबकि सर्विस इंडस्ट्री में वैसा कुछ नहीं होता है। इट इज मोर ऑफ या तो सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है या तो लिमिटेड पर्सन ड्रिवन होता है। तो वहां पे क्रॉस डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन उतना एकदम कह सकते हैं ना कि 110% जरूरी ही नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 110% जरूरी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के पैरामीटर्स पे, लेकिन होना दोनों जगह पे चाहिए। और वंडरफुल। एंड इज देयर एनी डिफरेंस जहां पे हम व्हाइट कलर और ब्लू कलर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं? उसमें मेजर डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम ही है। ओके
Okay. ह्यूमंस आर देयर, आपको डेली हडल मीटिंग में सबका गोल लेना है और उसको क्लब करने के टाइम पे शायद थोड़ा सा जो एचओडी है वो उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन द प्रोफाइल्स और वर्क प्रोफाइल्स वी आर वर्किंग ऑन एज डिपार्टमेंट. Okay. Okay. So the third question, सुहाग, जिसके अंदर मैं और एक क्वेश्चन इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो है should morning huddle be followed by one-on-one discussion also? So that's one question that has popped up. और उसके साथ जो और एक इंटरव्यू कर रहा हूँ वो है, जैसे बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि एचओडीज भी हैं, उसके बाद वो एचओडीज के ऊपर जो ओनर होता है वही वहीं पे बैठता है, उसी ऑफिस में बैठता है. तो हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सच मॉर्निंग हडल शुड बी देयर? जनरली जो सबसे ज्यादा रिजल्ट जनरेट करता है वो 3 लेयर प्रोसेस. 3 लेयर में अगर ये प्रोसेस हो रहा है ग्राउंड लेवल, मिड लेवल एंड मिड लेवल का टॉप लेवल के साथ, तो ये सबसे ज्यादा रिजल्ट जनरेट करता है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है और मिसकम्युनिकेशन के स्कोप ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. तो 3 लेयर्स आर प्रीफर्ड, लेकिन जरूरी नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो शायद 4 या 5 लेयर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स. दूसरा सवाल मीर भाई आपने सॉरी स्टार्ट किससे किया था वो जरा should morning huddle be followed by one-on-one discussion also? Oh yes. जनरली अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड करना चाहिए. व्हाई? जब भी 1-to-1 मीटिंग होता है तब या तो हम क्रिटिसाइज या तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन ड्रिवन पे आ ही जाते हैं, क्योंकि जब 1-to-1 डिस्कशन होता है तो वो पर्सनल ग्राउंड पे चला जाता है. इसके ऑन द स्पॉट बाद अगर आपको मीटिंग करना है तो आप कोचिंग के लिए कर सकते हैं. यदि बेटा तूने ये 3 टास्क लिए थे, आई रियली वांट के तू उसमें ये थोड़ा सा चेंज कर, वो आप गाइड करने के लिए उसको बराबर यूज कर सकते हैं 1-to-1 को. लेकिन इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उसको डीमोटिवेट करने के लिए या उसको स्कोल्ड आउट करने के लिए 1-to-1 मीटिंग नहीं होना चाहिए. 1-to-1 मीटिंग सिर्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव स्ट्रोक और मीटिंग को और अटेंटिव कैसे किया जा सकता है और पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, उसमें वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या रोल था उसके लिए आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं. पॉसिबल हो वहां तक अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है. Perfect, wonderful. Another question which has just popped up is, I will reframe the question which is asked. जो question ये है कि how should a manager intervene? मैनेजर को कैसे इंटरवीन करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, दैट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन. अगर डिस्कशन डेविएशन में जाता है, अगर जो डिस्कशन हो रहा है उससे डेविएट हो रहा है, तो मैनेजर को कैसे इंटरवीन करना चाहिए और कैसे संभालना चाहिए विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन? यस यस यस, सबसे सिंपल तरीका यही है. एजेंडा जो हमने सेट किया है उसका पेपर बना के सबको दे दीजिए कि यही आपको पढ़ना है. ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, जो भी एजेंडा में हमने लिखा था कि भाई पॉजिटिव कल के दिन में आपने क्या किया, तो वो लिख के तू लेके आ, तुझे सिर्फ पढ़ना है. इससे डेविएट होने के स्कोप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. दूसरा एक चीज हमें जहां पे ध्यान रखना है, वो रूल शुड बी मेड कि एक ही बंदा एट अ टाइम बोलेगा, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा. कंक्लूड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एचओडी के पास है, कोई और उसको कंक्लूड नहीं कर सकता, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता. अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है, आपको लगता है, तो आप एचओडी के साथ 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं बाद में, टीम रिजॉल्व होने के बाद, या तो ईमेल पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं. ये एक प्लेटफॉर्म आप ओपन करके उनको दे सकते हैं, जिससे ये इंटरवेंशन का कोई प्रोसेस ही अंदर ना आए. ये स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि कोई इंटरवेंट करके जाए और अपना पूरा फ्लो उससे नॉन रिजल्ट प्रोड्यूसिंग किसी एक्टिविटी में डाइवर्ट हो जाए. क्योंकि हमने ये मीटिंग ये रखा है पॉजिटिव स्ट्रोक्स देने के लिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है कि जिसको सबकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है. True. There are 2 more questions. One is, if possible, if you can share the format of morning huddle. अगर कोई ऐसा format है, तो we can share. So another question is, can we share this PPT with all? That call either you have to take. Okay. We'll keep everyone informed. Another question which has come up is, should we conduct an evening huddle also? So it's conduct a huddle at the end of day to ascertain the effectiveness of the morning huddle or not? It is my personal again comment. करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं. बट व्हाट आई रियली फील इज, इवनिंग को अगर आप मॉर्निंग हडल मीटिंग या सॉरी हडल मीटिंग ना करें तो बहुत अच्छा है. व्हाई? इससे एक तो टीम को 2 बार एंगेज होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जब हम इवनिंग को ये मीटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा एक टोन आ ही जाता है कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम नए गोल्स सेट नहीं कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं इवनिंग को. सुबह जो किया था वो हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इवनिंग एजेंडा. अगर मुझे रिव्यू ही करना है
तो फिर वो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट डे वो वैसे ही टास्क लेगा कि जो या तो क्वांटिटी में कम है या तो कम रिजल्ट जनरेट करेंगे जिसको मैं अचीव कर लूंगा। समवेयर चैलेंजेस जो लेने चाहिए वो चैलेंजिंग जितना एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इवनिंग मीटिंग्स आई पर्सनली सजेस्ट कि ना हो तो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग हडल मीटिंग सिर्फ मॉर्निंग हडल मीटिंग रखिए और पूरे दिन आप प्लान कीजिए कि हाँ इवनिंग मीटिंग क्यों रखनी पड़ती है। मैं तो चाहूंगा कि आप इवनिंग मीटिंग ना रख के वैसा कोई रिपोर्टिंग एल्गोरिदम प्लान कीजिए कि आपके पास रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाए। मीटिंग ना रख के रिपोर्ट अगर आ जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आ जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और पॉजिटिव स्ट्रोक से नेक्स्ट डे तो आप स्टार्ट कर ही रहे। प्लस इसको आप मर्ज कर सकते हैं वीकली रिव्यू मीटिंग के साथ। एक वीक के पूरे टास्क उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो वीकली रिव्यू हो जाए। Perfect. So just to add what you said, Swag, मेरे एक्सपीरियंस में ये इवनिंग हडल वाला एक एक्सपीरियंस आया था when I was working with telecom industry। वहाँ पे मेरे बॉस जो थे रोज सुबह इररिस्पेक्टिव ऑफ शाम को 11 बजे हमारी शिफ्ट खत्म होती थी या 12 बजे हम घर पहुंचते थे या 1 बजे कॉल खत्म करके पहुंचते थे, रोज सुबह 10 बजे का हमारा कॉन कॉल होता था। तो वन डे आई आस्क्ड टू माय बॉस कि सर आप रात को ही क्यों नहीं कर लेते इवनिंग हडल, जैसा हम बता रहे रात को ही कॉन कॉल क्यों नहीं कर लेते। तो ऑन विच ही रिप्लाइड कि रात को मैं करूंगा तो आप मैं डोज दूंगा, उसका असर रात को खत्म हो जाएगा, सुबह आप वापस वैसे की वैसे ही हो जाओगे। So that's again one of the point के शाम को अगर आप इवनिंग हडल लेते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस ड्राई अप हो जाता है बिकॉज एवरीवन गोज बैक टू देयर होम्स, बैक टू द नॉर्मल रूटीन, और उसका जो इफेक्टिवनेस माइंड पर रहना चाहिए वो कम हो जाता है। दैट्स व्हाई मॉर्निंग हडल शुड बी अगेन इन माय ओपिनियन आल्सो should be the only way to process, right? Yes. So I guess majority of the questions I have already encountered और सारे questions का answers हमने ले लिए हैं। Still if anyone has any questions, I'm putting my email ID over here. You can come back to me with any questions, or if you want to reconnect with us for any other queries, we'll be sharing the PPT with you all who have already joined, and we'll share the tool also. Yes, we'll share the tool also. So I'm putting across my email ID over here. Just a moment, Suhag. Yes. Yeah, so that's all. So thank you so much for joining, and it was wonderful webinar. As I have shared with you all, we have another webinar coming up next week, which is designed specifically for IT industry. So the details will be shared on with you all again. So do come back to us, do register for that webinar also, and do let us know if we can help you all in any manner. So this whole initiative of doing webinar on with different people and from different stream, the major purpose is to give back to the fraternity from which we have got lot of things. Giving back is the main essence of this webinar. So Suhag and my objective and purpose was that, so that everyone can get help from us, whatever little knowledge we have, whatever in any manner that we can help you all. So thank you so much. Thank you, Suhag. Yeah. One request from my side to the participants: if they can email us the suggested topics they would like to have for future. Sure. We'll try out something के जो already उनको या तो बहुत ज़्यादा help कर सकता है या उनको चाहिए. True. Thank you so much. We can again come back. So I have requested Suhag to again take some time out and have another webinar with us. Maybe at the end of next week or maybe after that. But yeah, you all can email us the topic that you want us to deliver so that we can precisely design any kind of content on that. So once again, thank you so much. Thank you everyone. Thank you for joining in. Thank you, Suhag. Wonderful session. Thank you. I'll be ending the webinar now. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you everyone. Bye-bye.